So we will continue with current electricity. Page number 218, where we are going to see what is a meter bridge experiment. Meter bridge. Okay? What is meant by meter bridge? Earlier in this topic, we have talked about Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, and Winston's network, Winston's bridge. We have seen this. What is the balance condition? Under the balance condition, we know that R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. ऐसा होता है. P upon Q is equal to S upon R. It was something like this that we have already talked about. Winston's bridge. Winston's bridge का कुछ कंस्ट्रक्शन इस प्रकार होता है. There is a bridge here along these four sides. There are the resistances here is connected across the supply. This is P, Q, S, and R. Something like this. P, Q, S, and R. Balance condition होता है. Balance condition का मतलब डिस्टेंस पॉइंट्स A, B, C. Balance condition का मतलब होता है यहाँ का potential is equal to यहाँ का potential. The potential at B is equal to potential at B. This is called as equipotential. So if this is an equipotential, तो करंट ना तो B से D की तरफ बहेगा, ना तो D से B की तरफ करंट फ्लो होगा. So यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. आप इसको कॉन्टैक्ट बनाए, बिगाड़े, निकाले, रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा. So this is called as balance condition. And for the balance condition, P upon Q is equal to S upon R. This is called as the balance condition for Winston's network. This we have already seen. And why am I revising this here? Is we are going to make use of this balance condition for understanding this meter bridge. What is this meter bridge? Okay, now let's look at this. This is a device. This is an electrical device in the lab. Lab में ये device होता है. This is called as a meter bridge. उसका setup कैसा होता है देखते हैं. Now as the name suggests, this is meter. Meter मतलब कि यहाँ पर this is 1 meter long wire. This is a wire which is 1 meter long. This is a copper wire. ये उसके नीचे 1 मीटर का स्केल होता है. The scale is calibrated from 0 to 100 centimeter. So basically this is the meter bridge. 1 centimeter, 2, 3 और उसके अंदर फिर छोटे-छोटे calibrations भी होते हैं. Are you all able to hear me properly? Say yes or no please. Hello. Can you all hear me please? Great. So this is 1 meter long scale. और वहाँ पर स्केल के यहाँ पर there is a wire. This is 1 meter long wire. ठीक है, कंडक्टिंग वायर. अब ये जो वायर है, this wire is connected to L shaped metallic strips. ये एक L shaped metallic strip है, ये दूसरा L shaped metallic strip. L shaped metallic strips है. Metallic है मतलब conducting है for sure. ये metallic है, ये conducting. दोनों के बीच में और एक यहाँ पर मेटल स्ट्रिप है. ठीक है. अब यहाँ पर एक unknown resistance होता है. I call this as X. X is the unknown resistance. And then there is the resistance box here. I call this as R. R is the resistance box. ठीक है. And there is this galvanoid. ठीक है. बस बाकी यहाँ से कुछ कनेक्शन होते हैं. यहाँ पर बैटरी होगा,
ये होगा और यहाँ पर एक रेजिस्टर होगी, उस रेजिस्टर से ये तक कंट्रोल में करेंगे। तो दिस इज ऑल द सेटअप। इसको कहते हैं चौकी, क्या होता है चौकी वापस एक्सप्लेन कर दो। अब मुझे एक चीज़ आपको पूछनी है, आई वांट यू टू आंसर समथिंग है कि इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दीस टू? हेलो प्लीज आंसर। मुझे कोई सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही, आपको दिखाई दे रहा है कोई सिमिलरिटी? सिमिलरिटी इतनी है बस में यहाँ पे एक बैटरी रखी है, बाकी कुछ बैटरी और ये गैल्वेनोमीटर, जी स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर। हेलो 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 हेलो, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर? कैन यू प्लीज टेल मी? सो यहाँ पर व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू? मुझे कोई सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही। नाउ लेट मी टेल यू दस व्हाट इज द सिमिलरिटी। दीज टू स्ट्रक्चर्स, इसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसे क्या सिमिलरिटी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पे इस चीज़ को आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, टॉम एंड जेरी में चीज़ें ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, तो उसी तरीके से इसको, इस डायग्राम को अगर मैं कुछ इस प्रकार बनाऊँ, देखिए गौर से, सेम मैं आपको यहाँ पर तो देखिए गौर से, ये जो है इसे मैं पी बोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ के जो रेजिस्टेंसेस है, तो आई से दिस इज द वन रेजिस्टेंस एंड दिस इज अदर रेजिस्टेंस। दिस वायर हैज गॉट सम रेजिस्टेंस इन दैट। ये जो वायर है दैट इज एस, और इस वायर के अंदर जो भी कुछ रेजिस्टेंस है वो आर है। और इनको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, और इन दोनों को मैं कनेक्ट करूँगा डायगोनल से। और ये सेम है ना, इज दिस सेम? यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर का स्ट्रिप है, ये भी कॉपर का मेटल स्ट्रिप है। तो यहाँ पर P, Q, S, S है, इससे अब इस पूरी चीज़ को अगर मैं खींच, इफ आई स्ट्रेच दिस, अगर मैं इसको बहुत पूरी तरह से खींच ये हवा है, सो इस चीज़ को अगर मैं खींच लूँ तो ये जो है वो सीधा हो जाएगा इस तरह से। तो ये है पॉइंट P, ये जो X है वही बन गया है P, एंड दिस इज पॉइंट A, ठीक है। यहाँ पर Q, ये है वो R बन चुका है, दिस इज P। तो ये जो है यहाँ पर है रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये जो वायर है उस वायर के दो हिस्से हैं। इस तरफ का जो हिस्सा है यहाँ पर है पॉइंट D, तो इस वायर का जो भी कुछ रेजिस्टेंस है वो S है, दिस इज S, दिस इज P, Q, S, और इस वायर का जो भी कुछ रेजिस्टेंस है वो R है। इज दिस क्लियर टू यू? हेलो हेलो। और बाकी ये जो है टोटल इसका 100 मीटर लेंथ वायर है, दिस इज 100। सो दिस एंड दिस इज सेम एंड दिस एंड दिस इज सेम, therefore this and this is same. I hope you understand what I'm saying. Is this clear? Is this clear? Is this clear? Please tell me. So we say this is the explanation of the metal bridge. The metal bridge is basically using the principle of distribution. This is called as left gap, this is called as right gap. These are the metal strips. So यहाँ पर connection बना होता है, यहाँ पर कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो वायर, तो ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग है। This
is also metal strip, and this is also L-shaped metal strip, and they are fixed on the wooden plank. वुडन प्लेट पर ये पूरा का सिस्टम फिक्स किया जाता है। और यहाँ पर एक लंबा वायर है, उस वायर के दो हिस्से होते हैं जहाँ पर आप ये कैथोड टच करते हो। दिस इज पॉइंट डी। सो दिस पार्ट ऑफ द वायर विल हैव सर्टेन रेजिस्टेंस। आई विल कॉल दिस एज रेजिस्टेंस ऑफ एक्स पार्ट ऑफ वायर, और इस तरफ लेफ्ट वाला एंड यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं रेजिस्टेंस ऑफ राइट पार्ट ऑफ आर पार्ट ऑफ आर एक्स, समझे क्या? या तो फिर मैं इसको बोलूँगा रेजिस्टेंस, ये ए है और ये भी ए ही है, और रेजिस्टेंस है ए डी, और ये जो है वो रेजिस्टेंस होगा दिस इज ए बी सी, दिस इज सी है और दिस इज ऑल्सो सी, तो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ सी डी पार्ट ऑफ द वायर। आई कैन कॉल दिस इज दिस ओके? सो बैलेंसिंग कंडीशन मतलब क्या होगा कि भाई हम यहाँ पर ये जो है वो ऐसे यहाँ पर टच करेंगे, इधर टच करेंगे या इधर टच करेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल है जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा एंड द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। अगर आप सही पॉइंट पर टच कर रहे हो तो इट्स अ बैलेंस नेटवर्क है, तो देयर विल नॉट बी एनी फ्लो इन दिस गैल्वेनोमीटर। अगर आप उसके लेफ्ट में टच करोगे तो समझो कि गैल्वेनोमीटर इज शोइंग सम डिफ्लेक्शन, समझो टुवर्ड्स राइट, और उस नल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नल पॉइंट व्हिच इज द डिजायर पॉइंट, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ढूंढना होता है। उसके राइट साइड में आप टच करते हो तो वहाँ का जो डिफ्लेक्शन है इट विल बी एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जहाँ पर जिन दो पॉइंट्स के बीच में डिफ्लेक्शन अपोजिट है, एक अगर राइट में है और यहाँ का डिफ्लेक्शन लेफ्ट में है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड और इट इज प्रेजेंट है। तो उसको टच करके आपको पता करना है कि भाई डिफ्लेक्शन जीरो तो है, हाँ है, तो फिर यही है हमारा नल पॉइंट। ऐसे सिंपल है। अब हम क्या करेंगे कि भाई ये जो वायर है, दिस वायर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस वायर। ओके, अब बैलेंस नेटवर्क के लिए यहाँ पर होगा P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R, मतलब X अपॉन R फॉर बैलेंस नेटवर्क, X अपॉन R is equal to RAD. This is the resistance of AD part of wire and this is the resistance of the CD part of the wire. So this is equal to resistance of AD part of wire upon resistance of CD part of wire. यहाँ पर this is the unknown resistance. ये सारा जिद्दोजहद हम कर रहे हैं to find out the unknown resistance. To find unknown resistance. Unknown resistance. That is X. और ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब हम इसके अंदर कौन सा रेजिस्टेंस होगा वो चूज कर सकते हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, तो वहाँ पर हम चूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस। ये पूरा बॉक्स होता है, इस बॉक्स में से हम चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पर डालना है, तो इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, दैट इज R। सो दिस इज द नोन रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, इधर का जो यहाँ का जो लेंथ होगा उसको हम यहाँ पर मीटर स्केल से देखेंगे भाई कितना है, 37 सेंटीमीटर पर ही आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज L। हम इसको बोलेंगे L, या तो फिर हम इसको LX बोल सकते हैं, X साइड वाला। तो ये जो होगा LR, जिसको ये जो लंबाई होगा उसका LR, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 100 माइनस LX, क्योंकि टोटल इज 100 सेंटीमीटर। अगर ये 38 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 62 सेंटीमीटर अपने आप हो जाएगा, बिकॉज द टोटल वायर इज 100 सेंटीमीटर। I hope you are following what I am saying there. Now we know that R is equal to rho L upon A. ये है रेजिस्टेंस, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये है लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये 11th स्टैंडर्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है, शायद आपको याद होगा। R is equal to rho L upon A. Resistance of any wire is given by rho specific resistance, L length of the wire and A is the cross sectional area. तो ये जो वायर है इसका लेंथ सिर्फ चेंज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है एंड सेम मटेरियल ऑफ द वायर, मतलब वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे रेजिस्टेंस ऑफ एडी पार्ट ऑफ द वायर चाहिए, इट इज नथिंग बट रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वायर। कैन यू ऑल हियर मी प्लीज? हेलो हेलो हेलो। हाँ, इनटू LX डिवाइडेड बाय एरिया इज A, एंड देन R ऑफ CD, रेजिस्टेंस ऑफ CD पार्ट ऑफ द वायर इज अगेन रो इनटू LR में बोलूँगा उसको, LR, L into R divided by A. So when I take the ratio of these two, which I need over here actually, so RA upon RAD upon RCD
Rho gets cancelled, A gets cancelled, rho gets cancelled, A gets cancelled. So basically this will give me resistance of AD part of the wire divided by resistance of CD part of the wire is equal to Lx upon Lr. So let me substitute it over here. So this will become X upon R is equal to Lx upon Lr लिखो या 100 minus Lx लिखो. 100 minus Lx बात तो सेम ही है. So if I want to find out the unknown resistance, it is R into Lx upon 100 minus Lx. मतलब मुझे सिर्फ दो चीजें पता होना जरूरी है उसके लिए. What is the resistance in the box, resistance box, and what is the length of the balancing wire in the left arm, left side का. तो ये फॉर्मूला वहाँ पर दिया है पेज नंबर 218 and I want you all to put it in the box please. Therefore we can find out the unknown resistance by using the meter bridge. We can find out the unknown resistance by using the meter bridge. Is this clear to you all? No? Please check. Two resistors of 2 ohm and 3 ohm are connected across the two gaps of the meter bridge as shown. So let me say this is the meter bridge. यहाँ का resistance है 2 ohm and 3 ohm. ऐसे दो resistances है. They are connected like this and there is the gap between them. And then there is the connection. This is a 2 volt battery they have shown here. 2 volt battery. Calculate the current through the cell when the bridge is balanced and the specific resistance of the material of the wire. So current चाहिए is balanced and the specific resistance of the material of the wire. Calculate the current of the cell. Okay. Given the resistance of the bridge wire, resistance of the bridge wire. Now this wire is called as bridge wire. ये जो वायर है उसको ब्रिज वायर बोलते हैं. उसका रेजिस्टेंस दिया गया है R is equal to 1.49 ohm. 1.49 ohm. And its diameter, इस वायर का diameter दिया है D is equal to 0.127. Question सबका समझ में आ गया? No, when this is a balanced network, during balanced network यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा. बेसिकली ये पूरा का पूरा these two we say that ये जो है वो कनेक्शन ना होने के बराबर है. सो these two resistances they are in series. सो उसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम, जो कि उसका और इस वायर का रेजिस्टेंस उन्होंने ऑलरेडी दिया है. दिस वायर का रेजिस्टेंस इज R is equal to 1.49 ओम. समझे क्या? और यहाँ से फिर तो ये दोनों पैरेलल में है. सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस is equal to 1/5 plus 1/4 or 1/1.49. This is what we get. So this is going to be 1.49 plus 5, that is 6.49 upon 5 into 1.49. So the resistance is 5 into 1.49. Calculators please, upon 6.49. This will be the effective resistance. Get your calculators. Calculators. And get me the answer here. This will become 5 into 1.49 divided by 6.49. That is 1.148. The resistance is 1.148. This is the overall resistance. पूरा मतलब इसको पैरेलल में जो आएगा तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है 1.148. एंड ये है बैटरी ऑफ 2 वोल्ट. सो I V is equal to I upon R. R is equal to V upon I. So I is equal to V. Voltage is 2 and resistance is 1.148. So let's find out what is this. 2 upon 1.742 ampere. This is the current which is flowing through this. What is the answer there? 1.74. The same answer they have got. Now they are asking what is the specific resistance of the wire.
specific resistance. Now resistance of the wire is R is equal to rho L upon A. Well, that will give me rho is equal to R into A. A is the cross sectional area upon L. Now area is pi by 4 d square. Cross sectional area is pi by 4 d square. तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए देखिए, rho is equal to R. R इस वायर का सिर्फ मुझे चाहिए, that is 1.49 into pi. Pi is 3.14 into d square. Diameter is इतना सेंटीमीटर, मतलब 0.12 into 10 raised to minus 2 मीटर और 1.2 into 10 raised to minus 3 मीटर, और उसका स्क्वायर चाहिए. दिस इज द डायमीटर. उसका स्क्वायर चाहिए मुझे. यहाँ पर 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44 इन 10 raised to minus 3 का स्क्वायर होगा 10 raised to minus 6 divided by L. Length of the wire is 1 meter. So this is 1 into 4. Now let us do this calculation by using the calculator again. So 1.49 into 3.14 into 1.44, 10 का पावर हम अलग ही रखेंगे, divided by 4. So this is 1.68 into 10 raised to minus 6. और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर into 10 raised to minus 6 ओम मीटर. This is the specific resistance. So I found out the current which is flowing through this battery and the specific resistance of this wire. And that's the answer. Any doubts about this? Please check. Hello. As I told you, the meter bridge is used here to find out the resistance of the galvanometer. So the unknown resistance is X, that is the galvanometer resistance. And this method, as I told you, is called as Kelvin's method. But then, if I use this same setup, then for each setup, I have to have 2 galvanometers. यहाँ पर मुझे 2 galvanometers की जरूरत पड़ेगी. So that will be very costly होगा, फिर unconventional method होगा. Because 2 galvanometer को हम avoid कर सकते हैं. We can simply use 1 galvanometer. How to use it? Now that method is called as Kelvin's method. This method where we find out the galvanometer is called as Kelvin's method. Okay? Now let us see what is done here first of all. ये यहाँ पर रियोस्टेट वगैरह ये पूरा का पूरा कनेक्शन वहाँ पे दिखाया गया है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस ऐसा दिया है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. अब वो क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर गैल्वानोमीटर होगा तो मुझे इफ आई यूज द गैल्वानोमीटर हियर, सही है, तो वहाँ पर नल पॉइंट एग्जैक्ट मिलेगा, दैट इज नो डिफ्लेक्शन. लेकिन अगर वो मैं इधर चिपकाऊंगा या फिर इस तरफ में चिपकाऊंगा तो वहाँ पर क्या आएगा, देयर विल बी द सम रीडिंग. यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट में रीडिंग हो सकता है, इसमें राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो सकता है. सो दिस इज हाउ आई फाइंड आउट द नल पॉइंट. लेकिन इसी दौरान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इधर चिपकाऊंगा तो यहाँ का जो रीडिंग है वो किसी एक डायरेक्शन में दिखा देगा, और यहाँ पर मैं चिपका दूंगा तो यहाँ का रीडिंग अलग डायरेक्शन में दिखा देगा. आई अंडरस्टैंडिंग दैट. और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो शायद कुछ रीडिंग दिखा देगा, यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. तो व्हाट आई से कि अगर मैं राइट पॉइंट पर मतलब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, समझो कि मेरे पास एक ही गैल्वेनोमीटर ये वाला, अगर इक्वी पोटेंशियल यहाँ का गैल्वेनोमीटर है ही नहीं, अगर मैं इक्वी पोटेंशियल इफ दीस 2 पॉइंट्स आर इक्वी पोटेंशियल तो क्या होगा, ये एक पैरेलल सर्किट होगा. मतलब यहाँ का एक रेजिस्टेंस और यहाँ का एक रेजिस्टेंस, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला. मतलब आप इसको मेक द कॉन्टैक्ट और यू ब्रेक द कॉन्टैक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल. आर यू ऑल देयर ऑन द लाइन प्लीज? हेलो हेलो हेलो, आर यू ऑल देयर ऑन द लाइन? हेलो. हाँ, तो अगर ये इक्वी पोटेंशियल या बैलेंस नेटवर्क होगा तो दिस पॉइंट आई कॉल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. अगर ये इक्वी पोटेंशियल होगा पॉइंट्स बी एंड डी, या ये बैलेंस नेटवर्क होगा, तो इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होता. कोई करंट फ्लो नहीं होता मतलब आप वेदर यू मेक द कॉन्टैक्ट और ब्रेक द कॉन्टैक्ट, देयर इज नो चेंज. ओके, इसका मतलब क्या है कि इवन इफ यू मेक द कॉन्टैक्ट और ब्रेक द कॉन्टैक्ट, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट सेम ही रहेगा. एंड दैट्स व्हाट द डिसाइडिंग फैक्टर हियर, कि हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे, यहाँ पर टैप करके ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिसमें
when you make the contact and when you break the contact, galvanometer will show the equal deflection, same deflection दिखाएगा, equal deflection. और इसलिए इस मेथड को equal deflection method भी कहते हैं. This is also called as equal deflection method. When you make the contact and when you break the contact, there is no change in the deflection of the galvanometer. We search for such point. That is called as equal deflection method, which is also called as Kelvin's method, and that method is discussed here on page number 219 in the another heading of Kelvin's method to determine the resistance of the galvanometer by using the meter gauge. So there is no change in the deflection. ये दिया है working के point number 3 में fourth line वहाँ पर the galvanometer shows no change in the deflection is found. No change. That is also called as equal deflection. No change in the deflection, or we also you can state there. This is called as equal deflection method. Equal deflection method. Equal कब को होता है deflection ये? During making of the contact and during breaking of the contact. Is this clear? बाकी सब reading same होगी. I'll call this as LG and this is called as LR, which is actually हाँ बोलो 100 minus. कितना टाइम रह गया है? कितना टाइम रह गया है? चलो. So let me apply the formula for meter gauge. So this x के जगह पर आएगा G upon resistance box का resistance R is equal to LG upon LR ले लो या 100 minus LR, 100 minus LG. So this way I can find out the resistance of the galvanometer. This is the formula for that, and that formula is given on page number next page 220 पर ये formula दिया है. Please put it in the box. Okay. Hello.